Hello students, I hope everybody is fit and fine. So welcome back to chapter 16, Heredity and Variation. In part 2 we are going to consider about Mendel's principle of heredity. Students, we have studied in the last chapter or last part about the how heredities are transferred with the help of DNA and RNA. In this part we are going to study in detail about the laws of inheritance. So the major contribution in this law of inheritance was done by Sir Gregor Johann Mendel. He was an Austrian scientist. He studied the inheritance of some characteristic on the pea plant, and he has given that this pea plant it follows certain laws of inheritance, and later on these laws were studied in the field of modern genetics. So he has studied various characters of pea plant because of the various contrasting characters which are present on the pea plant. So here you can see how the contrasting characters were present in the pea plant. तो आपको यहाँ दिख रहा है चार्ट में कि पी प्लांट को ही क्यों कंसीडर किया गया था फॉर द स्टडी ऑफ दिस inheritance of loss. So here you can see the 7 pair of contrasting characters regarding the shape of the seed, color of the seed, color of the flowers, shape of the pods, color of the pods, position of the flowers, height of the plant. अब यहाँ पे आपको कुछ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ऐसी दो लिस्ट दिख रही है. सो डोमिनेंट characters are those characters if they are present then they are expressed in the next generation, while recessive characters are those characters if they are present still they are not expressed in the next generation unless it is crossed with the second recessive character. So इस तरह से dominant characters expressed होते हैं तो recessive characters सप्रेस्ड होते हैं और उन्हें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. तो ऐसे डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स को मेंडल्स ने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेन किया है. किस तरह से हम लोगों के अंदर जो भी नए प्रोजेनी फॉर्मेशन होता है then which characters will be expressed in the next generation. Now however we all know that every parent make the equal contribution for the progeny formation, but only those characters which are dominant they will be expressed in the next generation. Now these are the example of plants, that is Pisum sativum. In human beings also we have the varieties of characters which are dominant and recessive. So here it is the chart which shows that in human beings the dominant characters are rolling tongue, so recessive is non-rolling tongue. Then hairs on the arms is the dominant character, so absence of hairs on the arms is the recessive one. Black and curly hair is the dominant character and brown and straight hair is the recessive character. Whereas free earlobe is the dominant, so attached earlobe is the recessive character. इस तरह से स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस किया जाता है. नो फॉर दिस मेंडल हैज़ कैरीड आउट सेवरल एक्सपेरिमेंट्स. लेट अस फर्स्ट स्टडी द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो मेंडल इन्होंने क्या किया था, एक सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर किया था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द प्लांट दिख रहा है, तो हाइट ऑफ द प्लांट में टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ड्वार्फनेस रेसेसिव कैरेक्टर है. जीनोटाइप मीन्स वो जीन्स जो इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें हम लिखते हैं. तो टॉलनेस के लिए हमने कैपिटल टी लिखा है, तो ड्वार्फनेस के लिए हमने यहाँ पे स्मॉल टी लिखा है. आप देखोगे कि जब इनका गैमेट फॉर्मेशन होता है ओनली सिंगल गैमेट जीन इज गेटिंग कंट्रीब्यूटेड. तो यहाँ पे आप देखोगे सिंगल जीन जो है वही यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है. सो स्मॉल टी एंड कैपिटल टी. So when gamete formation takes place, only one of the gene take part in the contribution. We are getting this F1 generation. So F1 generation जो उन्हें मिला, it was having all the plants as tall plant. अब ये tall plants तो present थे, but they were not
जीनोटिपिकली सेम एज द पेरेंट प्लांट, क्योंकि आपको पता है कि जीनोटिपिकली टॉल प्लांट में कैपिटल की ओनली प्योर टॉलनेस के कैरेक्टर्स थे, तो यहाँ आपको हाइब्रिड वेराइटी दिख रही है। नाउ मेंडल ही हैज़ कंटिन्यूड हिज एक्सपेरिमेंट एंड ही हैज़ सेल्फ क्रॉस द प्लांट्स। तो जो उसे F1 जनरेशन में प्लांट्स मिले उन्हें सेल्फ क्रॉस किया गया, एंड दिस इज़ हाउ व्हाट ही हैज़ गॉट अबाउट दिस F2 जनरेशन। उनके रिजल्ट्स हमें इस तरह से मिलते हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट व्हेन दिस प्लांट्स दे वे सेल्फ क्रॉस, तो जब उन्हें सेल्फ क्रॉस किया गया तो यहाँ पे आप देखोगे व्हेन कैपिटल T इज सेल्फ क्रॉस यू विल गेट दिस टाइप ऑफ टॉल प्लांट। उसके बाद में जब कैपिटल T यहाँ पे ये क्रॉस्ड होता है मेल गैमेट के स्मॉल t के साथ, अगेन वी गेट द टॉल प्लांट। देन फीमेल प्लांट का स्मॉल t ड्वार्फ वाला इफ इट गेट्स यूनाइटेड विद द मेल गैमेट देन वी गेट द टॉल प्लांट। इफ दिस स्मॉल t इट गेट्स यूनाइटेड विद द स्मॉल t देन वी गेट द ड्वार्फ प्लांट। तो इस तरह से आप देखोगे अगर हम फिनोटिपिक रेशो की बात करते हैं तो वी गेट दिस फिनोटिपिक रेशो। हमको ये फिनोटिपिक रेशो मिलता है 3:1, दैट इज टॉल प्लांट इज टू ड्वार्फ प्लांट। वेयरएज अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करते हैं तो हमें 3 वेराइटीज़ के प्लांट्स मिल रहे हैं। विच आर दीज वेराइटीज? सो प्योर टॉल प्लांट कैपिटल T, pure dwarf plant small t, and hybrid plants. This is known as heterozygous because here one gene of tallness and one gene of dwarfness was present, whereas in both these examples only the pure gene, pure tall and pure dwarf was present. In this way Mendel is able to explain how the characters are transported. अब हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर में जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के होते हैं, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के होते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स के क्यों होते हैं? क्योंकि वो F1 जनरेशन में रिसेसिव होते हैं। जब ऐसे 2 रिसेसिव कैरेक्टर्स कंबाइन होते हैं तब वो हमको F2 जनरेशन में एक्सप्रेस्ड होता है। तो हमें कहते हैं कि आप दादा जैसे दिखते हो, आप में दादा के जैसे कैरेक्टर्स हैं। सो विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स was very rightly explained. Then Mendel carry out his second experiment with the help of dihybrid cross. Dihybrid means he has taken 2 pairs of contrasting characters. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड को लिया था। तो राउंड एंड येलो विद द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, यहाँ पे आप देखोगे उन्हें हमने एक्सप्रेस किया है कैपिटल R कैपिटल Y से। तो व्रिंकल एंड ग्रीन दे वर द रिसेसिव कैरेक्टर्स, दे वर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल r एंड स्मॉल y. Here during gamete formation only single gene contribute for that characters. Then we get the first generation. फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमें सारे प्लांट्स राउंड और येलो सीड्स के मिलते हैं बिकॉज कैपिटल R कैपिटल Y प्रेजेंट था। तो इस तरह से मेंडल्स के एज पर एक्सपेक्टेशंस ही हैज़ गॉट द फर्स्ट फीलियल जनरेशन प्लांट्स. Then what he has done, he has self crossed this variety. Now while self crossing the variety he has got these characters. अब आप देखोगे जैसे जैसे यहाँ पे सेल्फ क्रॉस किया गया तो यहाँ पे आपको इस तरह के गैमेट्स मिलते हैं। तो देखो हर गैमेट इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। ये तो प्योर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर वाला राउंड येलो मिला है और ये प्योर आपको मिला है ग्रीन एंड व्रिंकल। बट ये जो 2 गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं कैपिटल R स्मॉल y राउंड एंड व्रिंकल, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? स्मॉल r एंड कैपिटल Y यानी व्रिंकल एंड येलो। इस तरह से आपको 2 नए गैमेट्स फॉर्मेशन दिख रहे हैं जो हमारे पेरेंट जनरेशन में नहीं थे। इस तरह से अगर हम इसको सेल्फ क्रॉस करने के बाद ये जो पुन्नेट स्क्वायर आपको मिल रहा है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है हाउ वी गेट द वेरिएशंस इन द न्यू जनरेशन। तो न्यू जनरेशन में देखिए कैपिटल R कैपिटल Y, when it unites with this we get capital R capital Y means the plants will be purely round and yellow. यहाँ पे आपको जो जनरेशन मिल रहा है कि फीमेल गैमेट का कैपिटल R Y और मेल गैमेट का कैपिटल R स्मॉल y यहाँ पे कंबाइन होता है तो वी गेट द F2 जनरेशन विथ R कैपिटल Y एंड स्मॉल y. तो स्मॉल y मीन्स यहाँ पे व्रिंकल सीड्स के
ग्रीन कलर के जो थे वो प्रेजेंट थे बट इट वाज रिसेसिव। यहाँ पे भी आप देखोगे राउंड एंड व्रिंकल, आर स्मॉल आर फॉर द व्रिंकल कैरेक्टर, तो यहाँ प्रेजेंट है बट वो एक्सप्रेस नहीं होता है क्योंकि वो रिसेसिव है। इस तरह से आपको हर वेराइटी के प्लांट्स यहाँ पे कॉम्बिनेशंस में मिल रहे हैं। इफ़ वी गो फॉर द फिनोटिपिक रेशो ऑफ राउंड येलो व्रिंकल एंड देखो राउंड येलो व्रिंकल येलो राउंड ग्रीन एंड व्रिंकल ग्रीन, then the phenotypic ratio which is observed in this plant is 9:3:3:1। okay, so 9 plants हमें ओरिजिनल पेरेंट वेराइटी के मिल रहे हैं, व्रिंकल येलो 3, राउंड ग्रीन 3 एंड व्रिंकल ग्रीन 1। इस तरह से हमें फिनोटिपिक रेशो में 2 वेराइटीज़ के नए प्लांट्स मिल रहे हैं, बिकॉज राउंड येलो वॉज द ओरिजिनल पेरेंट प्लांट, व्रिंकल ग्रीन वॉज द ओरिजिनल, बट ये जो बीच के 2 हमें वेराइटीज़ मिल रहे हैं फिनोटिपिकली यानी आंखों से जो दिखते हैं हमें, तो इनमें ये हमें अलग कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। सेम इफ़ वी गो फॉर द जीनोटिपिक रेशो, तो जीनोटिपिक रेशो भी हमें अलग अलग मिलती है। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला जो जीनोटिपिक रेशो आपको दिया है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, आप अगर इसमें से काउंट करते हैं ओनली 1 इज हियर। सेकेंड देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक है और यहाँ पे आपको ये एक मिल रहा है। सो ये रेशो अगर हम इस तरह से काउंट करते हैं पुन्नेट स्क्वायर में, इट कम्स आउट इज टू 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। इस तरह से हमें 9 वेराइटीज़ के प्लांट्स मिल रहे हैं। इसमें से आप देखोगे ये एक ओरिजिनल पेरेंट प्लांट है, ये एक ओरिजिनल पेरेंट प्लांट है, लेकिन बाकी के जो हमें 7 वेराइटीज़ मिल रहे हैं दे आर टोटली न्यू कॉम्बिनेशंस। तो इस तरह से मेंडल्स का डायहाइब्रिड क्रॉस ये हमें लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन रीयूनियन का भी कंसेप्ट समझाता है, और इस तरह से वी गेट द क्लियर आइडिया कि हम लोगों के अंदर में कुछ कॉम्बिनेशंस हमारे पेरेंट्स के आते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के आते हैं और कुछ कॉम्बिनेशंस हमारे ओन होते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ अगर हमने सिर्फ 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है तो हमें 9 वेराइटीज़ दिख रही है F2 जनरेशन में। तो यू कैन इमेजिन कि हम ह्यूमन बींग्स में अगर 23 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है तो हमें कितने सारे जीनोटिपिक वेरिएशंस मिल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है नो 2 इंडिविजुअल्स ऑन द अर्थ आर सेम, एटलीस्ट हमारे फिंगरप्रिंट्स ही डिफरेंट रहेंगे, किसी के सेम नहीं रहते हैं। हम फिनोटिपिक रेशो यानी हम दिखने में तो सेम हो सकते हैं, हमारे जैसे दुनिया में एक जैसे 7 इंसान होते हैं, बट जीनोटिपिकली वी आर ऑल डिफरेंट। So with the help of Mendel's experiment, the Mendel's law of inheritance were very nicely explained. I hope you have all understood it. Thank you for watching the video. See you in the next part with the new concepts. Thank you very much.